హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్. నేను మీ సాహితి. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ వృషాలి జోషి, రాష్ట్రీయ సంఘటన మంత్రి, విశ్వ మంగళ్య సభ ప్రచారక్ కూడా నాగ్పూర్లో. హాయ్ మ్యామ్, వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్. నమస్తే మ్యామ్. What exactly is Vishwa Mangalya Sabha? See, Vishwa Mangalya Sabha is an organization. It has started 19th January 2010 at Nagpur, and we work on one specific topic, that is Matrutva, motherhood. As we all know, what to study to become a doctor, what to study to become an engineer. Every field, every career has its own syllabus, and for 30 to 40 years that career remains. But when a girl enters the family and when she become a mother of two children, what is there to give them, what values she should inculcate, what sanskar she should give, what the role she has as a mother. In all these 25 years before her marriage, she is not prepared anywhere for this role, and so we have developed this syllabus, what is the role of a mother in every family, and we want that ideal mother to be given, bestowed to each family of India. And on this topic only we work all over India. तो मैम आपने बोला था विश्व मंगल्य सभा is totally about the motherhood. Yeah. So what exactly Matrutva is in today's generation, in today's society? Matrutva is same. It is same in past also. It will be same in future also, and it is same today also. So Matrutva is a value. It is ये एक रुतम है. रुतम माने ऐसा सत्य जो कभी भी नहीं बदलता. तो मातृत्व तो हमेशा ही सेम रहा है. But when we see in this generation, you know, they are going out of the track because a mother, from motherhood to a leadership, these two are coexisting. मतलब एक मदर भी है और एक लीडर भी है. ऑफिस में काम करती है, बाहर जाती है और घर में भी काम करती है. These two are coexisting. But in certain families, अभी तक भी वही कल्चर फॉलो हो रहा कि मदर शुड बी एट होम ओनली, शी शुड नॉट गो आउट, शी शुड नॉट वर्क. ये प्रेशर नहीं लेना है कि इज़ इट रियली टू बी फॉलोड और वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द जनरेशन. कि अभी जनरेशन बदल रहा है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिविजुअलिज्म भी, दे आर विलिंग टू टेक द इंडिविजुअलिज्म. सो इज़ इट राइट फॉर अ मदर टू बी एट होम और शी शुड ऑल्सो कम आउट एंड बी एन इंडिविजुअल वुमेन? It should be up to her. If she want to go out and have career and establish her leadership in the society, yes, she should. And if she want to stay in the home and to have her leadership in the home, it is also right. There are certain families कि वो rules, they will follow those rules कि they are setting the rules for a woman, not as a mother, at least as a woman. Isn't she responsible enough to take the rules, or isn't she responsible enough to set her own rules? Who are the others to set the rules for her? Because we are seeing this nowadays कि somebody is coming and saying no, you should do this, no, you should do this, you're not allowed to get here, you're not allowed to do that. But who are they to set rules for us? As in the family, always the family, there is a coexistence, and there is, it is not like that someone is coming and setting rules for her, but yes, there are rules for everyone, as well as for mother or a woman, as well as for a man, and as well as for the children. There are rules, there are specific rules to be followed, and each one should follow those rules. No one can overcome it. अदरवाइज द जो वातावरण है वो बिगड़ जाता है. अगर कोई कहे कि मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूँगा या करूँगी, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा. इसलिए जो एक रूल सबके लिए बना के रखे हैं, एक वो ह्यूमन वैल्यूज़ के आधार पर है, जो संस्कारों के आधार पर है, जो परिवार और समाज के स्टेबिलिटी के लिए है, तो वो रूल्स सभी को लागू होते हैं और वो रूल्स सभी ने फॉलो भी करने चाहिए. So ma'am, when we are speaking about the rules, अभी
इस जनरेशन में किड्स आर लाइक माई लाइफ माई रूल्स, हु आर यू टू जज मी. सो ऑन द सभा ऑफ विश्व मांगल्य सभा की ऑर्गेनाइजेशन से आप इस जनरेशन किड्स को व्हाट यू वांट टू से अबाउट द कल्चरल वैल्यूज एथिक्स, वो आप आपकी वर्ड्स में बताइए ना कि बिकॉज स्टूडेंट्स एंड द किड्स आर नाउअडेज आर माई लाइफ माई रूल्स, हु आर यू टू से हु आर वी टू एक्सेप्ट दैट, वाई वी शुड एक्सेप्ट दैट, कि इस थॉट को बदलना है. It is, if anyone is saying like this, my life, my rule, or I won't follow any kind of rule, it is sheer foolishness. There are nature's rule. If I'll say that I won't follow the gravitational force of law and I'll jump from the balcony, the result will be obvious. ठीक है? So those who are speaking like this, their results will also be obvious. We have to follow the rules. So ma'am, Vishwa Mangalya Sabha, what are the achievements till today? There are so many success stories. Because when we have started this thing that we are to guide mothers in their home, we find that right in every state, in every family, females, particularly married women, need such kind of guidance, because they do not have, they have not thought about their position, they have not thought about their role in the family, because it is taken just granted that I am not going to marry, I will have children, I will raise them, I will educate them, I will find some solutions about their health, education, everything, I will good career, and that's it. That is the role of mother. But this is not only the role of mother. There are so many things. हम जब माँ को माता कहते हैं, है ना, we use the word माता, we call भारत माता, गौ माता, गंगा माता, everywhere the word is माता is there. What is the meaning of माता? माता इस शब्द का अर्थ है जो अपने मत के अनुसार अपने परिवार का और बच्चों का मत निर्माण करती है. माता से ही शब्द तैयार होता है माटी, माने मिट्टी, जो पृथ्वी जैसी है, इसलिए उसको महिला कहते हैं. मही का अर्थ होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी के समान है, जो सृजन करती है. पृथ्वी भी सृजन करती है, माता भी सृजन करती है. जो सृजन किया उसका संगोपन करती है, जो संगोपित किया उसका कल्याण करती है. इसलिए जब हम उसे माता कहते हैं, जब वो मत निर्माण करती है, तब किसी घर में उस बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण में उसका सबसे बड़ा रोल है. केवल उसको बड़ा उसको करना है, उसको खाना पीना, उसका स्कूलिंग किया, उसका करियर किया, घर का आया गया देखा, रिलेटिव्स देखे, इतना ख़त्म उसका काम नहीं है. वो अपने परिवार से जो व्यक्तित्व निर्माण का काम है वो क्या कर रही है. बच्चों को संस्कार देना है, माने क्या करना है, और उसके लिए उसका क्या ट्रेनिंग हुआ है. ये जो बेसिक उसका ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग विश्व मांगल्य सभा से हम करते हैं. और वो चीज़ अभी हमें ध्यान में आया कि उसमें बहुत बड़ा लैक्यूना है. कोई इस विषय पर कभी सोचा नहीं है कि एक माँ को किस प्रकार के ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक तो उसने केवल अपने करियर का सोचा है. कॉलेज में भी गई, ना ये कॉलेज में पढ़ाया, ना स्कूल में पढ़ाया, ना घर में पढ़ाया, ना उसने कभी सोचा. और जैसे ही वो फैमिली में गई, एकदम से उस पर एकदम परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बहू ऐसे उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है. बट जब उसको ये इस प्रकार का गाइडेंस मिलता है कि आपकी परिवार में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है. कभी कभी ये भी ध्यान में आया है कि जो गृहिणियाँ होती है, जो होम मेकर्स होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. एक वो भी स्वयं के प्रति जो एक ऐसा जो भावना है वो भी उसमें रहता है, एक न्यूनगंड जिसे कहते हैं, तो वो भी उसमें रहता है. उसको ऐसा लगता है कि मैं गृहिणी हूँ, मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक फैमिली में, मैं बाहर कुछ कमा के नहीं ला रही हूँ, मेरा बाहर कुछ करियर नहीं है, मैं केवल एक होम मेकर हूँ, तो आई एम डूइंग नथिंग. और परिवार भी उसको कभी कभी यही बोलता है कि आप तो घर में रहती हो, कुछ नहीं करती हो. तो उसको उसका महत्व ही पता नहीं है
कि that she is doing the utmost important job as a mother in raising the children, in giving the future of the nation, in giving a good person, good civilized people to the society. यही उसका सबसे बड़ा काम है, जो शायद विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन आज उसको उसका महत्व नहीं पता। तो ये जो हमें ध्यान में आया कि हर परिवार में ये समस्या है, हर माँ के सामने ये समस्या है, और आज 16 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो भी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है वो आज ये कहती है कि हमें अगर ये ट्रेनिंग पहले मिलता था, या आगे जो अभी जो शादी करने वाली लड़कियां हैं उनको अगर हम ये ट्रेनिंग देते तो निश्चित वो एक बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे व्यक्ति समाज को दे सकते हैं। तो मैम आपकी वर्ड्स से ना, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर इन द फैमिली, बट वो सारा काम करने के बाद भी, बच्चों को भी प्रॉपरली एजुकेट करने के बाद भी, शी इज़ द वन हु विल बी लिसनिंग टू एवरीथिंग फ्रॉम द फैमिली, from the society, from the working place, even from her husband. So how she should tackle that? Being a woman, उसको encouragement या courage कभी कभी खुद से नहीं आती है, तो उसको ना बाहर से लेना पड़ता है. Like somebody should encourage her and you people are encouraging her. But even though after the encouragement, अगर वो full down हो जाती है, if she is not able to tackle the things, वो कैसे करनी है? How a woman should be strong enough? देखिए, ये जो है आपने जो कहा वो कुछ हद तक सही भी है। उसको परिवार से भी सुनना पड़ता है, उसको वर्क प्लेस से भी सुनना पड़ता है, क्योंकि आज भी महिलाओं का जो एक्सेप्टेंस है, उनके नेतृत्व का एक्सेप्टेंस, उनकी लीडरशिप का एक्सेप्टेंस, वो आज भी समाज में उस हद तक नहीं है। तो ये जो है कि वो उसको कैसे टैकल करे। विश्व मांगल्य सभा ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये होता है, दो हमारा कार्यक्षेत्र फोकस्ड माँ पर है, लेकिन ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम केवल महिला को ही उसको टैकल करने के लिए नहीं रेडी कर रहे हैं, तो हम उसकी आजू बाजू की परिस्थिति, आजू बाजू का सोसाइटी भी कैसा उसके अनुकूल चेंज हो, इसमें भी प्रयासरत है। उसको कहते हैं सोशल कॉन्शियस का निर्माण करना, सामाजिक विवेक का निर्माण। कभी कभी पारिवारिक ओरिएंटेशंस के माध्यम से, कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ में जो हम काम करते हैं छात्र सभा के माध्यम से, बाल सभाओं के माध्यम से, पारिवारिक सदाचार सभाओं के माध्यम से। हमारा एक यूनिट चलता है सदाचार सभा, जिसमें किटी के लिए जैसे महिलाएं एकत्रित आती है, या फिर कि कभी कोई पार्टी के लिए एकत्रित आती है, तब वैसे ही मंथली महिलाएं सब 30, 40, 50 महिलाएं हर एरिया में एकत्रित आती है। उसको सदाचार सभा कहते हैं। ये मंथली मीटिंग होता है, इसमें गीत से शुरुआत होता है, ध्यान प्राणायाम होता है, और एक 12 महीने के 12 टॉपिक्स होते हैं जो मातृत्व, मदरहुड, फैमिली, नेशन, सोसाइटी, इस सब पे आधारित होते हैं। तो उसमें, उस यूनिट में हर माँ का अपना एक व्यक्तित्व भी बनता है, क्योंकि वो नए विचारों से एक्सपोज होती है, वो अपना मत वहाँ पर रख सकती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी उसमें होता है। साथ साथ ऐसी ही सदाचार सभा उसके परिवारों के साथ भी होती है, तो परिवार में भी एक महिला को देखने की दृष्टि, एक मातृत्व के संदर्भ में विचार यह इस्टेब्लिश होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है, संगठित प्रयास। तो संगठित प्रयास माने केवल एक ही व्यक्ति को तैयार करना और वही उसके हाथ में तलवार दे देना और वो सबसे लड़े, ऐसा नहीं होता है। तो एक कॉमन कॉन्शियस पूरे समाज में निर्माण करना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो हम करते हैं। अभी मैम विश्व मांगल्य सभा 26 जुलाई को वी आर ऑर्गेनाइजिंग, मोहन जी भी आ रहा है सभा में, कि अगर कोई वुमेन आना चाहता है कि व्हाट कुड बी द प्रोसीजर, क्योंकि दोज वर्ड्स, उस सभा में जो भी वर्ड्स बोला जा रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन, कीपिंग असाइड मदर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन। तो मुझे ना आप बताइएगा प्रोसीजर की कैसे आना है, हाउ टू रजिस्टर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। आने वाले 26 जुलाई में परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, इनका एक लेक्चर, एक व्याख्यान हमने
कुमराम भीम आदिवासी जो सभागृह है वहाँ पर अरेंज किया है। ये जो व्याख्यान है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक पर है। वो विषय है युगानुकूल मातृत्व, कंटेम्प्ररी मदरहुड, द चैलेंजेस, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स टू। इसका एक बहुत समग्र चिंतन, इसका एक बहुत अच्छा विचार इस संदर्भ में स्वयं पूजनीय सरसंघ चालक जी इसमें रखने वाले हैं। और इसमें हमने पूरे दक्षिण भारत से, राइट फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला, तमिलनाडु, यहाँ से भी एमिनेंट जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र की, जुडिशियरी, फिल्म लाइन, देन एंथ्रोप्रेनर्स, प्रोफेशनल्स, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, इस प्रकार सभी प्रोफेशंस में जो एमिनेंट लेडीज़ हैं उनको हमने इस प्रोग्राम में बुलाया है। और उनके साथ सरसंघ चालक पूजनीय मोहन जी कंटेम्प्ररी मदरहुड इस विषय पर व्याख्यान भी करेंगे और इन सभी महिलाओं के साथ चर्चा भी करेंगे। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा क्षण है हम सब के लिए भी, क्योंकि ऐसा ही सेम प्रोग्राम 24 जुलाई को दिल्ली में भी आयोजित हो रहा है, जिसमें कंटेम्प्ररी मदरहुड, युगानुकूल मातृत्व, इसी विषय पर पूजनीय सरसंघ चालक वहाँ पर भी व्याख्यान देने वाले हैं। उत्तर भारत की एमिनेंट महिलाओं से वहाँ पर भी वो व्याख्यान देंगे। तो ये जो प्रोग्राम है जो 26 जुलाई को भाग्यनगर में होने जा रहा है, ये प्रोग्राम सभी यंगस्टर्स जो सभी क्षेत्र में जो एमिनेंट महिलाएं हैं उन्होंने अटेंड करना चाहिए। इसका हमने एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसीजर रखा है कि उन्होंने उनका एक मोबाइल हम यहाँ रजिस्टर करेंगे, उनको हम एक लिंक भेजेंगे, उसमें उनका फेस स्कैन होगा एंड दे विल गेट वन QR कोड, and by scanning that QR code then only the entry will be confirmed. Okay. So if anyone want to come to this program, they should approach to our contact persons, and then only they'll get that link to register. So by that way they can come. What is this contemporary motherhood or the universal motherhood, and it's relevant to this modern society? Contemporary motherhood is today's mother, whatever the problems she is facing regarding the parenthood, regarding her own confusions about her own motherhood. So all these problems should be addressed on the platform of our own values of Indian society. So as we are working right from 16 years in the field of Matrutva, it has become our duty to give solution in such problems of work life balance है, फिर बच्चों को संस्कार कैसे देना है, फिर आज के ये डिजिटल पूरे माहौल में हमने परिवार का भी स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रखना है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है जो बहुत ही हर माँ फेस कर रही है, इन सभी विषयों पर एक बहुत बड़ा चिंतन हम इस व्याख्यान के माध्यम से देने वाले हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पिलर्स होता है। What are the pillars for विश्व मांगल्य सभा? We work on 4 pillars: सेवा, सामर्थ्य, सदाचार और संस्कार। These are our 4 pillars. आप ना उसको एलॉबरेट कीजिए ना। देखिए, आज की जो माँ है, जो कंटेम्प्ररी मदर है, मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जिस वेद काल की हम बात करते हैं कि भारत में जो सबसे सक्षम माँ थी, जो सक्षम महिला थी, वो वेद कालीन महिलाओं की हम बात करते हैं। जब गार्गी थी, मैत्रेयी थी, लोपामुद्रा थी, जिन्होंने वेदों में भी ऋचाएँ लिखी है, जो शास्त्रज्ञ भी थी, जो समाज कारण भी करती थी, जो राष्ट्र के संदर्भ में बहुत बड़े अपने व्यूज़ रखती थी। तो ऐसे वेदकालीन महिलाओं की हम बात करते थे जो शिक्षित थी, सक्षम थी। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि आज की जो कंटेम्प्ररी महिला है वो भी उतनी ही सक्षम है, वो भी शिक्षित है, वो भी अपने शर्तों पर जीना जानती है,
वो भी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से अपने व्यूज़ रखती है, अपने व्यूज़ रखती भी है, उसके लिए झगड़ती भी है। तो ये सब वो कर सकती है। बस फ़र्क ये है कि जो वेदकालीन एक सक्षम महिला थी वो अपने रूट्स से कनेक्टेड थी, और आज की जो महिला है वो कहीं तो भी अपने रूट्स से भटक गई है। वेस्टर्नाइज्ड, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन का इतना ज़्यादा परिणाम अपने सोसाइटी पर है, और रादर मुझे वो वेस्टर्नाइजेशन का भी परिणाम ना लगते हुए हमारा ही कॉलोनियल माइंडसेट, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वही, उसी से हम बाहर नहीं निकले। इसलिए हमें जो भी वेस्ट से आता है वो बहुत अच्छा लगता है, और जो हमारा खुद का ओरिजिनल है, हमारी वैल्यूज़ है, हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटियल जो वैल्यूज़ है, ये सब हमें बहुत रिग्रेसिव लगते हैं। जो भी अगर हमने चाहे फिर अपनी भाषा में बोलना हो, चाहे अपना अटायर हो, ये सब अगर कोई भारतीय रखे तो लोग उसको तुरंत रिग्रेसिव समझते हैं, और जो वेस्टर्न सारा जो मोड में जो लोग रहते हैं उनको वो बहुत प्रोग्रेसिव लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ मेंटल पैरालिज्म, कि हमें अपना ही कल्चर का कॉन्फिडेंस नहीं है। वी आर लैकिंग अवर कल्चरल कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ नाउ आवर ड्यूटी, इफ़ वी रियली वांट टू डीकोलोनाइज आवर सोसाइटी in real sense with this independent India, then right from everything we should be cultured on our Indian values. इसके लिए हम हमेशा बहुत एक सूत्र हम देते हैं, there is one theorem we used to talk about, that if we really want to create India as the original India, with the original glory, that we should make these 6 bha Bharatiya. What are these 6 bha? Curious to know. These are bhasha, our mother tongue. We should talk in our mother tongue, or at least in national language. So bhasha, Bharatiya. Then bhusha means attire, वो भी भारतीय। थर्ड वन इज भजन, मीन म्यूजिक, वो भी भारतीय। फोर्थ वन इज भोजन, भारतीय। आजकल बच्चों को लड्डू, फिर अपना यहाँ साउथ में इडली, डोसा, वो अच्छा नहीं लगता उनको। पिज़्ज़ा, पास्ता, पैनकेक्स, वही अच्छा लगता है। वो टेस्ट से बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, माइंडसेट है। वो माइंडसेट से अगर हम बाहर निकले तो ये ही सब हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो भोजन भी हमारा भारतीय होना चाहिए। 5वां है भ्रमण। लोगों को ऐसा लगता है कि देश के बाहर अन्य देशों में घूमने जाए तो ही वो एक स्टेटस सिंबल है ना। और हालांकि हमारे देश में अगर हम अपने ही देश को एक्सप्लोर करने जाए तो इतनी विविधता, इतना सौंदर्य कि पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सुंदरता अपने देश में है। तो भ्रमण जो है वो भी हमने अपना भारतीय रखना चाहिए। और लास्ट वन इज भवन, मंगल भवना मंगलहारी। अपना घर अपनी भारतीय मूल्यों के आधार पर निर्माण करना और उसका जतन करना। तो ऐसे ये 6 भ अगर हम भारत के भारतीय करेंगे तो निश्चित ही विल गेट अवर ओरिजिनल ग्लोरी। अभी आपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताया था। आज ना वुमेन को सुनना पड़ता है कि शी इज़ ड्रेस्ड इन अ वेस्टर्न अटायर, इसीलिए ये सब हो रहा है सोसाइटी में। कि वो सही है? गलत है। कि लोग बोलते हैं कि क्राइम, जो भी क्राइम हो रहा है सोसाइटी में वो ड्रेसिंग की वजह से हो रहा है, और लड़की जो देखती है उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेन आकर्षित होके वो आ रहा है, कुछ कर रहा है। दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन ड्रेसिंग और जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स। इज इट ट्रू? Crimes are not related to attire. Crimes are not related to women or men.
even. Crimes are directly related to upbringing. And in that upbringing, role of mother again is very important. Until and unless we teach the values, until and unless we teach the respect as our Indian utmost value which is taught in our Indian culture, that matruvat paradareshu paradhaneshu लोष्टवत, है ना, जो महिला है, अन्य जो महिला है उसको माँ के समान देखो, किसी और का जो धन है वो लोष्टवत माने लकड़ी के समान, मतलब कोई मूल्य नहीं है, पत्थर के समान उसको समझो। ये हमारे इंडियन वैल्यूज़ है। तो जब हम अपने बच्चों को महिला के प्रति रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे तब तक हम इन सभी क्राइम्स से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए मैं हमेशा, मतलब हम जो कहते हैं कि भाई महिलाओं को माँ का जो रोल है कि एक बच्चे को क्या उसको सिखाना है। एक बहुत सुंदर कहानी है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े विचारवंत थे साने गुरुजी, उनके बचपन की ये कहानी है। तो उनके बायोग्राफी में ये आया है। वो कहते हैं कि एक बार वो और उनकी माँ रास्ते से जा रहे थे और दो बहुत सुंदर महिलाएं पास से गुजरी। तो पहली बार तो दोनों ने देखा और वो थोड़ी दूर जाने के बाद ये साने गुरुजी तब एकदम टीनेजर थे, तो उन्होंने वापस मुड़ के उनको देखा। तब माँ ने उनको एक ज़ोर से थप्पड़ लगाया तो वो जो थे तो वो झगड़ा करने लगे अपनी माँ से कि पहले तो आपने भी देखा। तब उनकी माँ ने जो उत्तर दिया है, मुझे ऐसे लगता है अगर ऐसा ही उत्तर और ऐसी ही सीख हर माँ अपने बच्चे को देगी तो महिलाओं के प्रति जो भी क्राइम्स है वो नहीं हो सकते। तो वो ऐसा था कि उनकी माँ उनको बोलती है कि देख, उनका नाम था श्याम, देख श्याम, पहली बार जो देखा वो उन महिलाओं का सौंदर्य देखा और तूने जब मुड़ के देखा जिसके लिए तुझे थप्पड़ पड़ी वो तेरी वासना थी, इसलिए तुझे थप्पड़ पड़ी है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस माँ ने समझना भी चाहिए और वैसी सीख उसने अपने बच्चों को देनी भी चाहिए, है ना। इसमें अहिल्याबाई का बहुत बड़ा उदाहरण है। अहिल्याबाई होळकर, उनका इकलौता बेटा था मालोजी होळकर, एंड ही वॉज द ओनली, वो एकमात्र राज का वंश था जो उनकी गद्दी आगे चलाने वाला था। बट व्हाट ही डिड, उसने एक व्यक्ति का खून किया। तो अपने इकलौते बेटे ने खून किया, अपना इकलौता बेटा जो राजवंश का इकलौता वारिस है उसने भी खून किया। इसलिए अहिल्याबाई वो माँ थी कि जिसने अपने इकलौते बेटे को हाथी के पैर के नीचे देकर मृत्युदंड दिया है। ये है वैल्यूज़, ये है हमारे भारतीय मूल्य, ये है माँ, एक स्ट्रॉन्ग मदर। तो ये जो है आज, ये जो जितने क्रिमिनल्स है जो बलात्कार करते हैं, जो कि अन्य प्रकार की विकृतियों में है, क्या ये इनकी भी तो कहीं ना कहीं माँ है ना। निश्चित ही जितने वो क्रिमिनल है उतनी ही वो भी जिम्मेदार है, चाहे वो कहीं तो भी गलत है। इसीलिए ऐसे बच्चे और ऐसी विकृतियाँ समाज में है। इसलिए महिला क्या पहनती है, महिला कैसे रहती है, इस पर उसके प्रति जो क्राइम्स है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। पर हाँ, इसकी एक दूसरी बाजू ये भी है, हमने कैसे रहना चाहिए। ये जो विजडम है, पार्टी में जाने के लिए पहनने वाले कपड़े कौन से और मंदिर में जाने वाले कपड़े कौन से, ये अगर पीएचडी, डॉक्टरेट, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ी लिखी, एमबीए, अगर ये महिला इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है तो उसको एजुकेटेड कैसे मानना। देयर शुड बी सम डिफरेंस। विजडम है ना, ये विजडम की बात है कि हमने सामने वाले के समक्ष कैसे प्रेजेंट होना है। और जब हम किसी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं,
जब हम बाजार में भी घूमने जा रहे हैं तो हमने कैसे जाना चाहिए ताकि लोग हमें किस प्रकार से देखें। कभी कभी सामने वाले ने हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए ये तो हमारे रहन सहन में ही उसका मैसेज जाना चाहिए। अगर वो गलत मैसेज जा रहा है, अगर सामने वाला हमसे गलत दृष्टि में देख रहा है तो भाई अपने पहले तो ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि तो मैंने तो कुछ गलत नहीं पहन लिया। इसमें भी बहुत अच्छी कहानी है। क्या है, आजकल हमें अपना इतिहास ही पता नहीं है, इसलिए ये सारा कन्फ्यूजन है। वापस से अहिल्याबाई के ही जीवन की कहानी है। अहिल्याबाई होळकर जिन्होंने 12 ही ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया। आज भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हम देख रहे हैं, ये सारे अहिल्याबाई ने बनवाए हैं, इसलिए हम वो देख पा रहे हैं। शी वॉज सच अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो उनके ही जीवन की कहानी है कि उनके महल में आनंदीबाई जोशी, आनंदीबाई पेशवा जो थी, जिन्होंने नारायण पेशवा का खून किया था, उसको नज़र कैद किया था। शी वॉज इम्प्रिजन्ड इन हर पैलेस। और उस समय आनंदीबाई पेशवा जो थी वो भारत की सबसे सुंदर महिला थी। तब आनंदीबाई को बड़ी जलन होती थी कि ये मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी अहिल्याबाई का नाम क्यों इतना देश में लिया जाता है। तो शी वॉज सो क्यूरियस टू नो वेदर अहिल्याबाई इज़ मोर ब्यूटिफुल देन मी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक दासी को अहिल्याबाई के पास भेजा और उसने कहा कि जाओ देख के आओ कि वो अहिल्याबाई मुझसे भी सुंदर है क्या। और जैसे वो दासी आई, वो आनंदीबाई पूछती है कि देखा आपने अहिल्याबाई को? दासी बोली हाँ मैंने देखा। तो क्या वो मुझसे सुंदर है? तो दासी का जो उत्तर है, मुझे ऐसे लगता है सभी महिलाओं ने उस दासी के उत्तर का विचार करना चाहिए। तो वो दासी कहती है कि नहीं आनंदीबाई, अहिल्याबाई आपके जितनी सुंदर नहीं है। अहिल्याबाई तो 40-45 की एज में भी है, थोड़ी ऊंची, पहाड़ी, दिप्पाड़, काली, सावली, है ना, सफ़ेद बस साड़ी पहनती है, गोपी चंदन का टीका लगाती है, रुद्राक्ष की माला पहनती है। शी इज़ एब्सोल्युटली नॉट ब्यूटीफुल देन यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, है ना। आप इतनी सुंदर है कि आपकी चेहरे को जो देखता है वो देखता रह जाता है, इतनी आप सुंदर है, ऐसे वो दासी कहती है। पर फिर वो कहती है कि अहिल्याबाई में क्या है पता नहीं, अहिल्याबाई सुंदर तो नहीं है, बट अहिल्याबाई में क्या है पता नहीं, जो अहिल्याबाई को देखता है उनको देखते बराबर उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करने की इच्छा होती है, ऐसा कुछ तो भी अहिल्याबाई में है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये कपड़े पहनने चाहिए क्या, मैंने वो पहनना चाहिए क्या, मैंने ऐसे दिखना चाहिए क्या, ये सबसे बेटर हर महिला ने ये सोचना चाहिए कि मुझे देखते बराबर किसी के मन में मेरे प्रति रिस्पेक्ट आता है क्या। मैंने ऐसे दिखना चाहिए कि कोई मुझे देखते बराबर किसी को ये ना लगे कि मैंने उसको देखा, मैंने उसको ये किया। मुझे देखते बराबर सामने वाले के मन में तुरंत ये विचार आना चाहिए कि मुझे आज उनके दर्शन हुए। क्यों ऐसा भाव सबके हृदय में लाने की ताकत हमारा अटायर नहीं रखता? तो ये सोचने की बात है और अपने अपने चॉइस की बात है। व्हाट वी वांट, what we need to wear, how we need to be addressed. It's all about the upbringing. कि mother को she should only educate a girl how to grow in the society, how to take the societal pressure, or should she even educate a boy कि आप जिस नज़रे से देखते हो लड़की को या वुमेन को वो बदलना है, कि she should also educate a boy, right? But इस सोसाइटी में जब हम देखते हैं कि एवरीबडी विल से कि मदर को गर्ल को एजुकेट करना चाहिए, बॉय को ना वो बस जब सोसाइटी में जाता है, he'll take his own responsibilities, he will grow. Is that true? No. Then how a mother should educate a girl and a boy in a same way or in a different way? As far as educating the girls and boys are concerned, they should be educated on the same way, because all the values should be given to both in the same way.
ये तो दोनों के लिए समान है. बट व्हेन वी टॉक, व्हेन वी speak about the discrimination and equality, at the same time there are some subscriptions, that is gender specific subscriptions. ठीक है, because girls are girls and boys are boys. So ये भी सिखाना चाहिए. ठीक है, आप घर के सारे काम दोनों को समान सिखाइए. खाना बनाना दोनों को आना ही चाहिए. अपने घर में जो मेहमान आते हैं उनका जो हॉस्पिटैलिटी है वो दोनों को सिखानी ही चाहिए. जो क्या कहते हैं लौकिक एजुकेशन है वो दोनों को समान ही देना चाहिए. प्यार दोनों को समान ही करना चाहिए. जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी दोनों को समान ही मिलनी चाहिए. बट गर्ल को भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिखानी चाहिए और बॉयज़ को भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सिखानी चाहिए. सो दीज आर सब्सक्रिप्शंस टू, दीज आर जेंडर स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन. बिकॉज इकोसिस्टम, हर महिला की एक इकोसिस्टम है और हर पुरुष की भी एक इकोसिस्टम है ना. उसको हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं. ये जो इकोसिस्टम है, ये माँ की जो इकोसिस्टम है, हर महिला की जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम, महिला की इकोसिस्टम, ये सारी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. उसका आवाज़ बहुत कोमल है क्योंकि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो उसकी आवाज़ सुन के डरे नहीं. उसका स्पर्श बहुत कोमल है. शी इज़ वेरी सॉफ्ट इन टच. वाई? बिकॉज वो जो बच्चा है जन्म लेने वाला वो सिक्योर फील करे. उसका हृदय बहुत संवेदनशील है ना. क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चे का भी मन पढ़ सके, है ना. वो बहुत सहनशील है ना. उसका जो सहन करने का जो ताकत है वो महिला की पुरुष से ज़्यादा होती है. बिकॉज वो प्रसव पीड़ा को सहन करनी चाहिए. तो उसका जो होल इकोसिस्टम है एक स्त्री का, वो सारा चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है. और पुरुष का जो इकोसिस्टम है वो सारा सुरक्षा से रिलेटेड है. उसका आवाज़ बड़ा है, वो ताकत वाली चीज़ें कर सकता है, वो मोर ये प्रेशर झेल सकता है, फलाना, मतलब फिजिकल प्रेशर. तो उसका इकोसिस्टम अलग है, माँ का इकोसिस्टम अलग है. आज क्या हो रहा है, समान समान इक्वालिटी के झगड़े में ये जो जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें हैं इसको भी लोग छोड़ रहे हैं. महिला पुरुष बन रही है, पुरुष महिला बन रहे हैं, है ना. तो ये भी नहीं होना चाहिए. तो while upbringing of girl, child and a boy, some things should be equal, but at the same time there are gender specific things should be taught also. मैम आजकल सोसाइटी में women is moving more towards individualism because they want to get financially independent. They are more career driven, and due to these norms in the society which are created, आजकल women शादी के side they are moving very less. They don't want to get married or else they are scared of getting married. अगर वो शादी भी कर लेती है, the divorce rates are increasing. ऐसी problems को ना society में आजकल we are seeing more because the rate is increasing. इस तरह के प्रॉब्लम्स को हाउ वी शुड एड्रेस. इंडिविजुअलिज्म ये एक वेस्ट से आया हुआ कॉन्सेप्ट है. वो पूरी तरह से पर्सनल राइट्स के आधार पर है. हर कोई खुद के अधिकारों की झगड़ा उसमें करते हैं. भारत का जो कल्चर है, भारत का सारा कल्चर एंड वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमारा सारा सोसाइटी ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर बना हुआ है, ना कि राइट्स के आधार पर. इसलिए हमारे सोचने का जो बेस है वो बेस ही अलग है. जो फैमिली का जो बेस है वो फैमिली का बेस राइट्स के आधार पर नहीं है, वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर है. और आज जो बेस बनाया जा रहा है वो राइट्स के आधार पर बनाया जा रहा है, केवल माई राइट्स, बट दे डोंट टॉक ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. दे ओनली
quarrel for the rights, my space, my individualism, my independence, and blah 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 like this. And even as you talk in the earlier question, that how to raise girl and a boy equally, in there also we are making a big mistake. When we raise a girl child, what her parents tell her before marriage? You get first financially independent, then get married. And while raising a male child, a boy, what parents told him? That you first settle in the career so that you can have a family, you can support the family. Means there are two different mindsets. While raising boy, we are making him toward family, है ना, tending towards family. And while raising a girl, we teach her that you be first financially independent. Means if you are in one circle that you are going, have your own circle different. Have your financial independence secure. This financial independence is a culprit word, what I feel. Career orientation is different thing. Financial independence is different thing. You should have your career. You should be financially strong. Why we do not teach a girl child that you should be financially strong and have financial understanding with your family? Why we always teach her that you be independent financially? This is wrong. Our teaching is wrong. है ना, जैसे हम लड़कियों को बोलते हैं कि भाई आपको मर्यादा ये ज़्यादा है, उसके लिए हम झगड़ा करते हैं, बट ये भी तो गलत हम सिखा रहे हो उसको कि जिस फैमिली में आप जा रहे हो उसमें आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखो, है ना. और उसमें सबसे बड़ा जो आघात होता है वो होता है समर्पण भाव से. क्योंकि जब एक स्त्री किसी फैमिली में जाती है, अपना परिवार जब वो निर्माण करती है, तब वो उसे अपना नहीं लगता, वो उसमें ही अपने अस्तित्व की खोज करती है. ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है. सो आई थिंक दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये जो वर्ड है वो हमने चेंज करना चाहिए. वन शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, वन शुड हैव अवर ओन करियर ओरिएंटेशन, वन शुड बी कलेक्टर, प्राइम मिनिस्टर even. But when she come in the home, she is not collector, she is not prime minister, she is not entrepreneur, she is not doctor, she is a mother. That is also her other career, and she should justify this role also equally. Being a prime minister, being a president, she'll face the troubles, challenges. But even at home, being a mother, she's also facing the troubles. When her own family is not able to accept her in the way she is, how a society is going to accept her? This problem is there. We cannot deny it. Yes, mothers are facing problems. Women as a homemaker even, जो गृहिणियाँ हैं वो भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा फेस करती है. बिकॉज एवरी वन सेज टू हर दैट यू आर डूइंग नथिंग, यू आर इन द होम. what you are doing, you are not going outside, you do not have your own career, you are not earning anything, you are just a family person, so you are doing nothing. Even she starts feeling that I am doing nothing, just for the sake of that identity. She's struggling. She struggled a lot, and even 5 lakhs, 7 lakhs income is coming in the home. She goes out, she join any school for 8 hours job in monthly 5,000 basis. For that identity. Only for that identity. So this is a very disgusting thing, I feel. If one person is earning for home, that entity, and another person is serving that entity, whether it is male or female, this line is very important.
either female is earning and male is serving the home, or a male is earning or female is serving the home, he or she should be equal stakeholder of his earning. But society won't accept. We have to make society understand and accept this thing, otherwise our societal fabric will be disturbed. And for that matter, again, our culture is very important, to follow our culture. How? Because in our culture only, we call a woman, a mother, as a Lakshmi. And हमने अभी तक देखा है कि अपने परिवारों में जब भी इनकम आता था, पिताजी माँ के हाथ में देते थे, माँ वो भगवान के सामने रखती थी और बाद में वो तिजोरी में रखा जाता था, जिसकी चाबियां माँ के कमर को रहती थी, ना कि पिताजी के पास रहती थी. ये हम सब ने अपने परिवारों में देखा है, आज भी टीवी सीरियल में भी यही देख रहे हैं. दिस इज आवर इंडियन नैरेटिव टू मेक अ फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड द ओनर ऑफ द इनकम, राइट? दैट्स व्हाई शी इज लक्ष्मी. ऐसी वो बेमतलब की लक्ष्मी नहीं है. घर का फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट और घर का फाइनेंशियल पूरा देखने की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए वो लक्ष्मी है. और आज ऐसी स्थिति है कि जो गृहिणी है, जो माँ है, उसको परिवार के पति के सामने या घर के ससुर के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं कि मुझे घर खर्च के लिए पैसा दो, पैसा दो. और इसलिए वो वहाँ अपमानित होती है. शी गॉट इंसल्टेड देयर. और घर की लक्ष्मी जब हाथ फैलाती है तब दारिद्र्य आता है. तो डोंट मेक लक्ष्मी टू बेग इन फ्रंट ऑफ यू. शी शुड ओनली ब्लेस everyone. So one should be very particular in keeping the financial rights of the women. Then only that family will be happy. And this message very thoroughly given to the society, that we should keep three things very preserved regarding any women, that these are 4 R's I used to say. First, recognition of her work, that a mother or a woman doing the most important job in the family as a homemaker. So recognition for her work. Don't ever call that you are doing nothing. So recognize her work as an important work. So recognition to her work. Then give respect. Another R is respect. One should respect mother. One should respect a woman very thoroughly. Only वो लिखने की बात और बोलने की बात नहीं है, मातृदेवो भव वगैरह, वो तो शास्त्रों में लिखा है, पर ग्राउंड पे कहाँ पर है? तो वो ग्राउंड पे लाना पड़ेगा कि शी शुड बी रिस्पेक्टेड प्रॉपरली. तो अनदर आर इज रिस्पेक्ट. थर्ड आर, जब उसका काम रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, तभी उसके फाइनेंशियल, फैमिलियल, सोशल राइट्स को सिक्योर किया जाएगा. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज इज शेयरिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी शेयर करने की ज़रूरत है. तो ये जो बार बार हम क्वेश्चन करते हैं किसी वर्किंग लेडी को कि भाई आप घर कैसे संभालते हो, तो केवल वो अकेली थोड़ी वर्किंग है. ये क्वेश्चन उसके हस्बैंड को क्यों नहीं पूछते? क्या घर संभालना केवल उसका जॉब है? अपब्रिंगिंग वैसा है तो हाँ. सो इक्वली आप ये घर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है, इसलिए ये दोनों का काम है. दोनों ने इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए. और इसीलिए महिलाओं के बारे में केवल माँ को स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी ही है, उसको ये समझना ज़रूरी है. दीज आर द थिंग्स दैट शी शुड अंडरस्टैंड एंड दीज आर द थिंग्स शी शुड इनकलकेट इन हर फैमिलीज. So she should understand the importance of these things, as well as an organization we work on the making social conscious also, to develop the social conscious regarding this. So this is a both side things. at least hoping after seeing this interview men will respect women in all the fours. Ma'am,
previously we spoke about individualism, marriage, divorce. Scared of marriages due to the individualism they wanted. Nowadays, people started living together. Co-living culture is getting more and more established in India. So, what are your words on that? Co-living, living together, Live in relationships. living relationships. This is not Indian. This cannot fit in the Indian fold, because see, whether it is wrong or right is up to them, those who are living. But as far as the societal health is concerned, our core value, हमारा जो कल्चर है, हमारा कोर वैल्यू हमको सिखाता है, बहुत बड़ा वैल्यू की हम हमेशा बात करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई. मीन्स आवर वैल्यूज टीच अस फॉर द सेक ऑफ जस्ट अ वर्ड, इफ टाइम कम्स यू शुड सैक्रिफाइस योर लाइफ टू. मतलब एक शब्द के लिए, भाई मैंने आपको वचन दिया है, मैंने आपको शब्द दिया है, उस वचन के लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ. ये मूल्य हमें पीढ़ियों से सिखाया गया है. ये हमारा इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा मूल्य है. और यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में आप एक रिलेशनशिप का भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते. सो दिस इज बिगेस्ट असॉल्ट ऑफ आवर होल कल्चरल सिस्टम कि आप यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द रिलेशनशिप. और हमारा तो वैल्यू हमको एक शब्द के लिए अकाउंटेबल रहने को सिखाता है. ये हमारा आइडेंटिटी है, ये हमारा कल्चर है. और यहाँ तो हम रिलेशनशिप का भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना चाहते, तो फिर हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? नो, हमारा होल कल्चरल फाउंडेशन इससे ध्वस्त हो सकता है. सो दिस इज नॉट acceptable in India. This should not be, and if it is coming, we as an organization, we will fight against it, because we are here to work on the cultural, the value based foundation of India, and whatever the things which will try to break this foundation, we won't make them succeed. So ma'am, it's really great you being here in the studio and teaching the society about the motherhood, about the contemporary motherhood, universal motherhood, upbringing of our children, societal norms, pressure, everything we spoke today. Speaking about the respect, responsibilities, rights, it was really great speaking with you, and thank you so much ma'am for being here in the Raj News. And after watching this video, kindly respect the women, kindly be responsible to her problems and support her, make her strong in your family and also in the society. Thank you so much.